I'm sorry, there was some problem in the connection. Can you hear me, Sister Sonali? Yes, 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 brother. Okay, okay, okay. So there was a little bit of interruption in the internet. So we'll start the sharing. Something very important that God put me on my heart. और कुछ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो प्रभु ने मेरे हृदय में डाला है. This Romans chapter 1 verse 21. रोमियो 1 उसका 21 वचन. It says, for even though they knew God, they did not honor him as God or give thanks, but became futile in their speculations, and their foolish heart was darkened. Professing to be wise, verse 22, they became fools. 21 और 22 वचन. इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया. वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए. So God has revealed himself to every human being who is alive in this world. और प्रभु अपने आप को हर एक मनुष्य के ऊपर जो जीवित है इस पृथ्वी पर अपने आप को प्रकट करते हैं. And if you read in verse 20, it says that all creation, when human beings, all of us look at all the creation of God, the skies, the stars, the mountains, rivers, we knew that some great power has made all these things. और यदि आप 20 वचन पढ़े तो यहाँ पर लिखा है कि जो कुछ भी हम देखते हैं, नदी, पहाड़ और सब जो सृष्टि की जो चीजें हैं, वो सब परमेश्वर की रचना है, उसकी सामर्थ्य है. Even people living in the jungles who are uneducated, they look up to God, to a creator, a God above, and ask him for help, and they know that the mighty power is there. और जो कोई जंगल में रह रहे हैं या अनपढ़ हैं, वो भी ऊपर देख के परमेश्वर की जो सामर्थ्य है उस पर भरोसा रख के उसको पुकार सकते हैं. So when we know that God is so mighty and powerful, then the first thing that we must offer to God is to give thanks to God. और हम जानते हैं कि प्रभु सर्वशक्तिमान है, तो सबसे पहले जो चीज हमें उसको देनी चाहिए वो है हम धन्यवाद. When a person, and even an unbeliever, gives thanks to God, then God comes closer to him. और जब व्यक्ति अविश्वासी होता है, तब जब वो प्रभु का धन्यवाद करता है उसके कुछ काम के लिए, तो प्रभु उसके करीब आता है. They say, Lord, we are nothing compared to this great universe. Lord, please show yourself to me. And when we cry out like that, then God comes close to us. और हम पुकारते हैं कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ आपने रचा है इस सृष्टि में उसके आगे मेरा कुछ भी नहीं है, प्रभु आपकी सामर्थ्य. और फिर प्रभु जो है उससे करीब आते हैं. In verse 20, the Bible says that nobody can give excuse on the last day they stand before God, that God did not speak to them and God did not show that he is a great God and a loving God. और प्रभु का वचन कहता है कि किसी के पास ये बहाना नहीं होगा कि प्रभु ने उससे बात नहीं कही है या प्रभु ने उसके करीब नहीं आए हैं. And that's why we also should never give any excuse for any of our sins or our failings. We have to say, Lord, please help me, and God will draw near and come and help us. और हम भी अपने पाप के लिए कोई भी बहाना नहीं दे सकते हैं कि प्रभु हमने ये पाप क्यों किया है. प्रभु के पास बस करीब आना है, प्रभु आपके करीब आएंगे. So verse 21 said, even though people know there was a great God, they do not honor him or give thanks to him. और 21 वचन कहता है कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया. We know in the New Testament there was a person called Cornelius who honored God. He was an unbeliever, but he thanked God and praised God and did fasting, and then that's why God sent Peter to tell the gospel to him. और एक व्यक्ति के बारे में नए वचन में हम व्यक्ति के बारे में जानते हैं जिसका नाम था कुरनेलियुस. उसने पश्चाताप किया और फिर जो है प्रेरित पौलुस ने उसको परमेश्वर का वचन सुनाया. Anybody who lives in this world who cries out to God, Lord, show me yourself to me, God is more than willing to show himself to them. जो कोई परमेश्वर को अपने हृदय से पुकारता है, जो कोई इच्छा रखता है, परमेश्वर भी इच्छा रखता है कि अपने आप को उस पर प्रकट भी करे. There was that eunuch from Ethiopia who came all the way to Jerusalem in the times of the apostles. He wanted to know the truth, but when he came to Jerusalem, they could not find the truth because they were only having a lot of tradition. और एक brother, what's the name? There's an Ethiopian eunuch. He was a minister in the queen's palace in Ethiopia.
who came to Jerusalem to worship God. और वो यरूशलेम आया था। यूनुक नाम का एक व्यक्ति था, वो यरूशलेम आया था। उसने ब्रदर प्लीज रिपीट। नहीं वो तो I'll tell you in हिंदी। एक हिजरा था, हम लोग बोलते हैं हिजरा, तो आदमी नहीं है, औरत भी नहीं है। वो इथियोपिया नामक एक देश से आए थे। वो उनकी रानी की सेवक थे, मंत्री थे। वो यरूशलेम में आए थे जब अपोस्टल्स थे, यीशु मसीह जी उठने के बाद। तभी बाइबल की खोज में थे, वो बाइबल लेके आए थे, लेकिन कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। प्रभु, ये सच्चा प्रभु कौन है? मैं सुना है, मैं सच्चा प्रभु को जानना चाहते। वो पूरा टेंपल में आए थे, मंदिर में आए थे यरूशलेम में, लेकिन कोई भी उनको कुछ बता नहीं सकता कि ये सच्चा प्रभु कौन है। They could not tell him who is the true and living God and Savior. At that time, God took Philip in a supernatural way and took him to this place called Gaza and made him speak the gospel to him. और जो फिलिप था, जो उनको एक गाजा की जगह पर, नामक जगह पर लेकर गया था और वहां पर परमेश्वर का वचन सुनाया। And there he gave the gospel to him because he was trying to read Isaiah. He could not understand the book of Isaiah. और वो यशायाह की किताब पढ़ना चाहता था और वहां पर उसको वचन सुनाया गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि वचन क्या कह रहा है। Then Philip began to explain to him and then told about Jesus Christ and the gospel to him. And then when they saw some water, he said, "Oh, there is water here. I can be baptized." और फिर उसको परमेश्वर का वचन सुनाया गया, उसने समझा और फिर वो कहता है कि यहाँ पानी है तो मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। And then this eunuch went back to his hometown in Ethiopia, and God took Philip in a very supernatural way and put him in some other place. और जब वो अपने देश में वापस पहुंचा तो जो फिलिप था, God took him in a very supernatural way to another place. और उसको बहुत ही अद्भुत रीति से वो दूसरी जगह पर लेकर गया। And then this Ethiopian eunuch was responsible for spreading the gospel in this country called Ethiopia. और इथियोपिया के देश में वो जो व्यक्ति था, उसने बहुत परमेश्वर के वचन को फैलाने का एक कारण बना वो। So this is how God loves people who hunger and thirst for him and want him. और परमेश्वर उनसे बहुत प्रेम रखते हैं जो परमेश्वर के लिए भूख और प्यास रखते हैं। Most people are just not interested in God. They want to just eat, drink, and enjoy themselves, and don't only think about God on Sundays, or rarely they think about God. और ऐसे हैं जो लोग हैं जो बिल्कुल परमेश्वर के बारे में नहीं सोचते। वो तो संसार में लुत्फ उठा रहे हैं, खाने पीना, मौज करना। बहुत से रविवार को याद करते हैं या बहुत ही कम परमेश्वर को याद रखते हैं। There are many believers also are like that. They hardly think about God and say, "Lord, what shall I do to please you?" And they don't even thank God for all the blessings God has given them. और यहाँ तक कि विश्वासी भी कुछ ऐसे हैं, वो बिल्कुल परमेश्वर को खुश करने वाला जीवन नहीं जीते, यहाँ तक कि धन्यवाद नहीं करते जो कुछ भी प्रभु ने उनके जीवन में अद्भुत कार्य किए हैं। Instead of looking at to God, we keep on grumbling, and instead of thanking, keep on grumbling and complaining. और धन्यवाद करने की बजाय सिर्फ कुड़कुड़ाना और शिकायतें करते रहते हैं। There is such a terrible sin to grumble and complain. और ये बहुत ही भयानक पाप है जो है कुड़कुड़ाना और शिकायत करना। So to grumble about different situations, because God says, "I am working everything for good," and we are keep on grumbling against God. और परमेश्वर का वचन कहता है कि सारी बातें मेरे लिए भलाई को उत्पन्न कर रही है, पर हम कुड़कुड़ाते हैं। When we give thanks to God, we honor God. जब हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, मतलब उसका आदर करते हैं। When we grumble and complain about all the situations of life, we are disrespecting God, we are dishonoring God. और जब हम कुड़कुड़ाते हैं तो परमेश्वर का निरादर कर रहे हैं, हम उसकी आज्ञा नहीं मान रहे। We are saying that I am great and you should serve God, you should serve me and look after me properly, and you're not looking after me. और हम ऐसा कह रहे हैं कि मैं कुछ महान हूँ और आपको मेरा ख्याल रखना चाहिए, आप मेरा ख्याल नहीं रख रहे। You are not solving my problems. I've got a lot of problems. Lord, solve my problems. आप मेरी समस्या को नहीं सुलझा रहे कि देखो कितनी सारी समस्याएं हैं, सुलझाइए इन सबको। But God wants us to give thanks. Say, Lord, I'm alive today. It's because of you. I have this breath in my life. We think we are very great and that we should get more and more things from God. But we must think that we are today here and tomorrow we may not be there. और बस परमेश्वर तो ये चाहते हैं कि हम उसका धन्यवाद करें कि प्रभु आज के दिन आपने हमें जीवित रखा है, आज मेरी
आज मैं सांस ले पा रहा हूँ प्रभु, इस पृथ्वी पर जीवित हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। The more clever and more intelligent the people get, the more become they foolish and the more they grumble. और जो जितने ज्यादा बुद्धिमान और चतुर लोग होते हैं, वही जो है शिकायतें करते हैं और मूर्ख बन जाते हैं। And then their understanding of God also, they make all foolish ideas about God, foolish philosophies, foolish ideas. और परमेश्वर के प्रति बहुत ही खराब विचार, बहुत ही खराब मनोविचार उनके हो जाते हैं। And then they start doing worshipping of idols. और फिर वो मूर्ति पूजक हो जाते हैं। And they start worshipping human beings. और वो फिर लोगों की स्तुति और महिमा करने लग जाते हैं। And they worship the good things of this world. और इस संसार की अच्छी वस्तुओं की महिमा करने लगते हैं। Yeah, I want good food, I want good house, I want good marriage, I want children, I want this, everything, my good job, my promotions, all things should be in time. They start seeking after that, and then instead of thanking God, they start worshipping the things of this world. और मुझे तो अच्छा खाना चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा घर चाहिए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, अच्छी नौकरी लग जाए। वो इस संसार को धन्यवाद करने लगते हैं, सराहने लगते हैं परमेश्वर का धन्यवाद करने की बजाय। This is the condition of most of the unbelievers, and sadly, it is the condition of many believers also. ये बहुत सारी दशा है अविश्वासियों की, और बहुत ही दुख होता है कहते हुए कि विश्वासियों की भी यही दशा है। And what does God think about all this? परमेश्वर इन सब के बारे में क्या सोचते हैं? And because of that, because we don't give thanks to God, God just leaves us and says, "Now do what you want." और क्योंकि हम धन्यवाद नहीं करते हैं परमेश्वर का, प्रभु हमें छोड़ देते हैं अपने हाल पर, कहते हैं जैसा जीना है जियो। And then the people go into all sorts of sins. और फिर हम चले जाते हैं जहाँ लोग जा रहे हैं सारे प्रकार के पापों में। All sorts of sexual sins, all sort of anger, hatred, bitterness, all comes across these people because they don't give thanks to God. लैंगिक पाप, गुस्सा, कड़वाहट, झगड़े, ये सब बातों में हम चले जाते हैं परमेश्वर का धन्यवाद ना करते हुए। See, when we look at our own lives, the problems in our life and the unhappiness and the sad part of our life is because we don't start giving thanks to God in everything. यदि हम अपने जीवन को देखें तो हम देखते हैं कि हमारा जो दुख है, हमारी तकलीफ है, वो सब कहाँ से आ रही है, क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर को धन्यवाद देने का कोई हिस्सा ही नहीं है। When a believer stops giving thanks to God, then the believer's life goes down and down and down. जब एक विश्वासी धन्यवाद देना बंद कर देता है प्रभु को, तब उसका जो आत्मिक जीवन है वो नीचे और नीचे के स्तर पर जाता रहता है। There are many people who have come to our church also. They were so good initially, but then they stopped giving thanks, and because of that, so much of sin has come into their life. और हमारी कलीसिया में भी कई लोग ऐसे थे जो बहुत ही अच्छी स्तर पर थे, पर क्योंकि उन्होंने धन्यवाद नहीं किया, इसलिए वो परमेश्वर से दूर हो गए। And their lives are full of tension and anxiety and all sorts of bad habits. और चिंताओं से और बहुत सारी गंदी आदतों से उनका जीवन भर गया। But when a person turns to the Lord, God frees them from all these things, and God says, "I will take care of you, and I want you to come and have fellowship with me every day." और जब हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, तब प्रभु कहते हैं कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ संगति रखो, मैं तुम्हें हर एक चिंता से दूर रखूंगा। When God blesses us in many ways, there is a great temptation to run after these earthly things which God has blessed us. और परमेश्वर हमें बहुत सारा आशीष देते हैं, और कई बार हम उन प्रलोभनों से भागते हैं जो हमारे जीवन में आते हैं। No, we tend to be attracted to all the good blessings which God has already given us. और परमेश्वर ने जो हमें दिया है उसके प्रति हमारा प्रलोभन बढ़ता जाता है। We like the good job, we like all the good house, we like the good clothes. Then instead of thinking about God, we think about all these earthly things. और हम अब अच्छी नौकरी के बारे में अच्छा सोचने लग जाते हैं, कपड़े जो है उसके बारे में सोचने लग जाते हैं, अच्छे खाने के बारे में। तो जो प्रभु ने हमें दिया है उसकी सराहना करते रहते हैं, पर प्रभु से दूर हो जाते हैं। The first thing in our life is always to honor God. सबसे पहली बात जो हमारे जीवन में होनी चाहिए वो प्रभु का आदर करना। 10 commandments is the first commandment. You shall have no other God beside me. There should be honored nobody else besides me. और 10 आज्ञाओं में सबसे पहली आज्ञा यही थी कि तू किसी और को परमेश्वर करके, प्रभु करके ना मानना। And you should always keep me first in my life, because I am the one who made you and keeping you alive every day. That's why we must honor God and give thanks and praise to Him. सबसे पहले जो है परमेश्वर ने हमें बनाया है, इसलिए परमेश्वर को पहले स्थान पर रखना है और उसकी ही महिमा करनी है। And when we stop doing that, we fall into all sorts of sins, and our idolatry comes into our life.
और जब हम ऐसा करना छोड़ देते हैं तो सब प्रकार के पाप और एक मूर्ति पूजा हमारे जीवन में आ जाता है। To honor God means to give thanks to Him and to always obey Him and do the things that are pleasing to God. और प्रभु का आदर करने का मतलब उससे खुश रखना, परमेश्वर जो कहता है वैसा करना और धन्यवाद करना। And to do the things that God loves and hate the things that God hates. और वो बातें करना जो प्रभु जिससे प्रेम रखते हैं वो करना, और प्रभु जिससे नफरत करते हैं वो ना करना। To keep God as first place above our family members, above our job, above everything that we like. और अपने जीवन के, हमारी नौकरियों में, हमारे परिवार में, रिश्तेदारों में सबसे ऊपर रखना प्रभु को। This is basic Christian life. All the godly people live like that. और ये बिल्कुल एक जीवन है जो हमारा स्तर है, जो शुरुआती जीवन है वो ऐसा ही होना चाहिए। परमेश्वर के साथ ऐसी संगति होनी चाहिए। When we go away from God, we want God to do everything for us so that we can be great and we can live a comfortable life, and we don't want to give the first place to God. और हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे लिए सब कुछ कर दे, हमें आरामदायक जीवन दे दे, पर हम परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करना चाहते, धन्यवाद नहीं करना चाहते। This is what God says, we become idolaters. और ये कह रहा है प्रभु कि हम एक मूर्ति पूजक हो गए हैं। Idol means to keep anything before God, it becomes an idol. और मूर्ति कुछ कोई सी भी हो सकती है, जो परमेश्वर से पहले हम रखते हैं वो सब मूर्तियां हैं। That is why, brothers and sisters, all sisters, we have to keep everything God first every day in our life. Check out, why is this thing so important to me? Is it more important than God? और इसलिए प्रिय बहनों, हमेशा देखना है हमें कि परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है क्या। हमें हमेशा जांचना है कि क्या कोई बात ऐसी है जो परमेश्वर से पहले है, क्या परमेश्वर से ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। Some people say, I don't have time to pray, I don't have the time to read the Bible. और कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है बाइबल पढ़ने का या फिर प्रार्थना करने का। God, sometimes we have a lot of time to keep on wasting our time on watching this internet and WhatsApp and what things, and then also eating, drinking. But to spend 5 minutes of quiet time, we find it very difficult. और हमारे पास कई समय होता है इंटरनेट पे गवाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, पर हमारे पास समय नहीं होता 5 मिनट भी कि हम प्रभु के पास संगति कर सकें। 10 minutes we must be quiet before God. Say, Lord, speak to me. Lord, show me what is there wrong in my life, and I want to please you and do the things that are pleasing in your life. Hello? हाँ, यस सर। 10 मिनट हम परमेश्वर के पास शांत मन से नहीं बैठ सकते हैं कि प्रभु बताइए कि आपकी इच्छा क्या है मेरे जीवन में, ताकि मैं उसको कर सकूं। Even as sisters, we are busy from morning to evening, doing so much of work in the house, looking after children. When you're lying down in the night and all the lights off, we can open up our hearts to God. Say, Lord, you speak to my heart. I want to please you. I want to do everything that is pleasing your sight. Show me anything wrong in my life. I want to confess it, and I want to set things right. और जब बहुत सारी महिलाएं जो है घर के कामों में व्यस्त रहती है, पर जब रात को वो अपनी बत्तियों लाइट को बंद कर देती है, तब परमेश्वर अपनी आंखों को खोलकर परमेश्वर की ओर देखे और पूछे कि प्रभु आपकी इच्छा क्या है, बताइए मुझे मेरे जीवन में क्या गलत क्या है, मैं उसका अंगीकार करूंगी और मानूंगी प्रभु। So when we do, then the Holy Spirit will show us so many wrong things in our life. फिर जो पवित्र आत्मा है बहुत सारी गलत बातों को हमारे जीवन में दिखाएंगे। The way you have talked, the way you behave with your husband or with their children, the Holy Spirit will say, this is not the way. Go and apologize. Go and say sorry. और जिस तरीके से आप अपने बच्चों से या पति से बात करते हैं वो परमेश्वर दिखाएंगे, फिर प्रभु बोलेंगे कि माफी मांगो उनसे और पश्चाताप करो। And that is to honor God. When we go and say, obey what the Holy Spirit says, let's humble ourselves. Then we find the joy of God and the peace of God, presence of God coming very close to us. यही है परमेश्वर का आदर करना और परमेश्वर की आज्ञा को मानना, फिर परमेश्वर की शांति, आनंद और प्रेम हमारे जीवन में आ जाएगा। Many times, many people don't like God to search their hearts at all. और कई बार ऐसा होता है कुछ लोग नहीं चाहते कि परमेश्वर उनके मन को जांचे, because the Holy Spirit will find some fault in your life. क्योंकि जो पवित्र आत्मा है वो कुछ खामियां आपके जीवन में निकालेंगे। The sins that are there in our life. जो पाप है हमारे जीवन में वो। And if we want to hide our sins, then we will make no progress at all. और यदि हम छुपाते रहें अपने पापों को तो कोई भी उन्नति हम नहीं कर पाएंगे हमारे मसीह जीवन में। But at the final day, God will take out all these wrong things that we have, and we will have to bear our shame. और फिर जब अंतिम दिन होगा तो परमेश्वर सारी गलतियों को बताएंगे, तब हम बहुत ही शर्मसार महसूस करेंगे। So today is the day where God is willing to speak to you, and we also can change.
और आज का दिन है जो प्रभु हमसे बात करना चाहते हैं और हमें भी बदलना है। And we can say that, Lord, I thank you, Lord, for showing this fault to me. Please, I will go and obey you, and then you will help me to overcome this bad habit. और प्रभु का धन्यवाद करना है कि प्रभु ये गलत बात बताने के लिए मेरे जीवन में धन्यवाद करता हूँ। मैं इस पे पश्चाताप करूंगा और मैं बदलूंगा। Maybe you're sitting and gossiping about other people and talking behind their back. The Holy Spirit will tell you, please go and tell that person I was talking bad about you, and please forgive me. और यदि आप किसी के पीठ पीछे बातें कर रहे हैं या चुगली कर रहे हैं, तो पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि नहीं, जाकर माफी मांगो, कहो उससे कि मैं तुम्हारे बारे में गलत बोल रहा था। Now, it is very difficult for us to humble ourselves and go and say the truth and ask forgiveness. और ये बहुत ही कठिन होता है अपने आप को नम्र करके उसके व्यक्ति के पास जाना और माफी मांगना। But the Holy Spirit will tell you, please do that. When you do that, you find you will come close to God. और पवित्र आत्मा हमें कहते हैं कि तुम इसको जरूर करो, यदि तुम करोगे तो परमेश्वर के करीब आओगे। And then God will give you help next time when not to backbite and not to gossip. फिर प्रभु हमारी मदद करेंगे कि अगली बार फिर हम चुगली ना करें या पीठ पीछे किसी के लिए बात ना करें। Or if you have grumbled, we say, Lord, please forgive me. I've grumbled. I don't want to grumble again. I want to give thanks to God. Whenever the difficult situations come, I want to give thanks to you. और यदि हम कुड़कुड़ाएं प्रभु के लिए, तो हमको माफी मांगनी है कि प्रभु अब आगे से नहीं कुड़कुड़ाऊंगा और परमेश्वर से माफी मांग के उसके करीब आना है। So that is really the the treatment for all our problems in our life is to give thanks. Remember God and give thanks to Him because He is in control of our life. हमारे जीवन में यही एक इलाज है, यही इसी बात को करना है किसी परिस्थिति में, और परमेश्वर के समीप आना है। And then we'll start obeying God more and more. फिर हम परमेश्वर की आज्ञा को और मानते जाएंगे। And then we will not try to please people. और फिर हम लोगों को खुश करने का प्रयास नहीं करेंगे। What is the use of trying to please people around you, whether believers or unbelievers? और अपने आसपास के लोगों को खुश करने का प्रयास करने का क्या मतलब है, चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी? One day on the final day, they will not come to support you. और अंतिम दिन में जब आप वहां पर खड़े होंगे तो आपको सहारा देने के लिए वो नहीं होंगे। That will not take away the guilt of sin from your life. Only God can help you. Jesus can help this. जो पाप का जिस शर्म है आपके अंदर जो दिखाई देगी उस दिन, वो आप निकाल नहीं पाएंगे उनकी वजह से, सिर्फ प्रभु ही निकाल सकते हैं। So we see in the book of 1 Samuel chapter 2, हम पहला शमूएल 2 अध्याय देखेंगे, verse 29 and 30. 29 और 30 वचन। This was God was speaking to Eli. ये प्रभु इलाई से बात कर रहे हैं। Eli was the high priest of God. और ये जो यीशु परमेश्वर का याजक है, The Old Testament, and his two sons were behaving very badly in the temple, and he was very lenient to them. और पुराने नियम में 2 ऐसे पुत्र हैं जो परमेश्वर के साथ लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। This was the time when Samuel was a very small boy. और ये उस समय की बात है जब शमूएल जो थे छोटे बालक था। And Eli's sons were disgracing the name of the Lord. और एलाई के जो पुत्र थे उन्होंने परमेश्वर का निरादर किया था। This is all a good example for all of us. और ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है हम में से हर एक के लिए। Verse 29 says, God was asking him, why do you kick at my sacrifice and at my offering, which I have commanded you in my dwelling, and honor your sons above me by making yourself fat with the choicest of every offering of the people of Israel? 29 वचन, 29. पहला शमूएल 2:29, इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि जिनको मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम क्यों पांव तले रौंदते हो, और तू क्यों अपने पुत्रों का आदर मेरे आदर से अधिक करता है, कि तुम लोग मेरी इजरायली प्रजा की इच्छा से अच्छी भेंटें खा के मोटे हो जाओ। See, the father was honoring his sons above God. और जो है पिता जो पिता है अपने बच्चों की ज्यादा प्रशंसा कर रहा है प्रभु के सामने। Many times people, they want to please people, their sons, their wives, their husbands, their relatives more than God. और कई बार लोग अपनी पत्नी की, बच्चों की, अपने घर की ज्यादा तारीफ करते हैं परमेश्वर से ज्यादा बढ़कर।
They want to, because of that, God is very angry with them because of God, you're not keeping first in my life. You're keeping all the other people, giving priority to them in their life, more time for your relatives, more time for your worldly friends, and that's why you're giving me a kick. और फिर प्रभु जो है बहुत ही क्रोधित होते हैं इस बात से, क्योंकि हम अपने जीवन में दूसरे लोगों को, अपने परिवार को, पत्नी को, बच्चों को रखते हैं और रिश्तेदारों को रखते हैं और परमेश्वर को पैरों तले रौंदते हैं। The great and mighty God has loved us so much and has brought us into his kingdom. We were supposed to be dead. God has saved us, and now we are just ignoring God and try to honor all the other people around us. और प्रभु जो है सर्वशक्तिमान है, उसने हमें बचाया है और दूसरों के सामने हमें दूसरों की प्रशंसा बढ़कर नहीं करनी है। And verse 30 says, therefore the Lord God of Israel declares, I did indeed say that your house and the house of your father should walk before me forever. But now the Lord declares, for far be it from me that those who honor me I will honor, those who despise me will be lightly esteemed. इसलिए इजराइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। This is a very important word, the word of God. Those who honor me I will honor, those who despise me will be ignored by me. ये परमेश्वर का बहुत ही एक महत्वपूर्ण वचन है हमारे लिए कि जो मेरा आदर करेगा मैं उनका आदर करूंगा और जो मुझे तुच्छ जानेगा वे भी छोटे समझे जाएंगे। All of you sisters, we have to honor God first in our life before everybody else. God should be first in your life before your husband, children, family or friends. और जितनी भी यहाँ पे बहनें हैं, हमें सबसे पहले परमेश्वर को अपने जीवन का पहला स्थान देना है। हमारे दोस्तों से बढ़कर, रिश्तेदारों से बढ़कर परमेश्वर को मानना है। May the Lord put the fear of God in your heart. परमेश्वर अपना भय आपके मनों में डाले। One day when you die, you have to see God. You have not to see your relatives and your friends. जब एक दिन आप मर जाएंगे तो प्रभु को आपको देखना है, आपको अपने रिश्तेदारों को या दोस्तों को नहीं देखना। When you know this and do this, you will not fear them, and then you will take the correct decisions to please the Lord every day. जब आप ये जानेंगे तो कोई भी गलत निर्णय नहीं ले पाएंगे, परमेश्वर के भय में चलेंगे। So this is how the apostle God told Eli that he will bless his family when he started serving the Lord initially very well. और ऐसे ही परमेश्वर ने जो है इलाई को बोला था कि मैं तुझे आशीषित करूंगा, जब वो बहुत अच्छे से परमेश्वर के साथ चलता था। But because Eli and his sons were unfaithful, God said, now because you have dishonored me, I will dishonor you and I will put you aside. और क्योंकि इलाई और उसके दोनों पुत्रों ने परमेश्वर का निरादर किया, तो प्रभु ने कहा कि तुमने मेरा आदर नहीं किया, मैं तुम्हारा आदर नहीं करूंगा। So if we also start dishonoring God in our own life, God will leave us aside. और यदि हम भी अगर ऐसा निरादर करते हैं परमेश्वर का, तो प्रभु हमें भी साइड में अलग कर देंगे। God does not show partiality to any human being. किसी भी मनुष्य के प्रति परमेश्वर का कोई पक्षपात नहीं होता। And if we honor God, whoever you are, whether you're rich, poor, sister, brother, uneducated, educated, God will exalt you. और यदि आप परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, यदि उसका आदर करते हैं, तो आप जो कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, अनपढ़ हो, आप जो कोई भी हो, परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। And how can you and I honor God? और अब हमें परमेश्वर का आदर करना है। Now how can we do it? ओके, कैसे हम परमेश्वर का आदर कर सकते हैं? From the beginning of the day, give thanks to God and praise Him, and the end of the day, till the end of the day, throughout the day, and before we sleep, say give thanks to God and praise God in everything. और दिन की शुरुआत होने से लेकर परमेश्वर की स्तुति और महिमा करनी है, धन्यवाद करना है, और दिन के अंत तक हमें पूरे दिन परमेश्वर की स्तुति, महिमा और धन्यवाद करते रहना है। And whatever the Lord tells you in the word of God, just do it. परमेश्वर के वचन के द्वारा जो कुछ भी प्रभु हमें बताते हैं, हमें बस करना है। Then you will see how wonderfully the Lord honors you, and not only you, your family members and all, and you will be a blessing to others. और फिर आप देखेंगे कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर आपको आशीषित करते हैं, और सिर्फ आपको ही नहीं,
आपके परिवार के सभी सदस्यों को आशीष मिलेगी। Honoring God means doing the things that God loves and hating the things that God hates. परमेश्वर का आदर करने का मतलब परमेश्वर को जो भाए वो करना, और जो नहीं भाता है, जिससे घृणा होती है, वो नहीं करना। But if we don't do that, then we find that God is, instead of being on our favor, he becomes against us. और अगर यदि हम नहीं करते तो परमेश्वर हमारी तरफ नहीं रहेंगे, हमारे विरोध में रहेंगे। Many times, many believers say, I don't know why God is against me. You start honoring God, start obeying God, then you'll see the blessing of God on your life. कई बार विश्वासी बोलते हैं, क्यों परमेश्वर मेरे विरोध में है? आप आदर करना शुरू करिए, परमेश्वर की आज्ञा मानना, प्रभु आपकी ओर है। And the greatest honor God gives a human being is that God comes very close to him. और सबसे अच्छा जो बात है परमेश्वर जो मनुष्य के लिए, कि परमेश्वर हमारे बहुत करीब आ सकते हैं। Suppose you want to honor some human being in this world who's very rich, and he becomes your best friend. It's such a wonderful privilege. Whatever you want, he will provide your need. और यदि इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति आपका दोस्त बन जाता है जो बहुत ही ज्यादा अमीर है, और आपको तो कितना अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि आप जो कुछ भी मांगेंगे आपको मिल जाएगा। Abraham, because he obeyed God and gave honor to God, he became God's good friend. और अब्राहम ने जो था परमेश्वर की हर एक आज्ञा को माना, इसलिए वो परमेश्वर का बहुत अच्छा एक मित्र था। And God provided for him very well. और प्रभु ने बहुत ही जो है उसको अपनी जो जरूरत के सामान थे वो बहुत ही अच्छे से उपलब्ध कराए। Though he lived in a desert, he had so many good things of this earth. और वो मरुस्थल में रहने के बाद भी उसने इस पृथ्वी पर की सब एक अच्छी वस्तुओं का लाभ लिया। But Abraham was not bothered about the good things of this world. He said, Lord, I want to be friend with God. I want to walk with him and always obey him. पर वो संसार की चीजों की चिंताएं नहीं करता था, पर वो तो बस यही कहता था कि मुझे परमेश्वर का मित्र होना है, उसका आदर करना है। So that's why when God told him also to sacrifice his son, he said, yes, I will do it, sacrifice. I will do it, Lord, because you told me to do it. जब प्रभु ने कहा कि तुझे अपने पुत्र का बलिदान देना होगा, तब वो मान गया। उसने कहा कि हाँ, मैं अपने पुत्र को बलिदान कर दूंगा। And because God said, now I know that you really fear me and love me. फिर प्रभु ने कहा कि हाँ, अब मैं जान गया हूँ कि तुम सच में मुझे प्रेम रखते हो और मेरा भय मानते हो। Because we love the Lord, we spend time with him, we talk to him, we give thanks to him, we obey him, and we read the word of God and come for meetings also. और क्योंकि हम प्रभु से प्रेम रखते हैं, इसलिए हम बाइबल भी पढ़ेंगे, उसके साथ समय बिताएंगे, और हम सभाओं में भी आएंगे। And that's how we become spiritually strong. और इस तरीके से हम आत्मिक जो है बलवंत होते जाएंगे। And to have the presence of God every day 24/7 is the greatest thing, honor that God can give any human being in this world. और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में 24 घंटे 7 दिन रहेगा, ये सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है पृथ्वी पर रहने वाले हर एक मनुष्य के लिए। And this is not for just preachers and teachers, it's for all, for ordinary people. और ये सिर्फ प्रचारकों के लिए या फिर शिक्षकों के लिए जो सिखाते हैं उनके लिए नहीं है, पर ये तो सभी साधारण मनुष्यों के लिए भी है। Moses was the humblest man because he obeyed God and God spoke to him face to face. और मूसा जो था बहुत ही नम्र व्यक्ति था, उसने परमेश्वर को आमने सामने देखा था। There are so many brothers and sisters who walk with God, even in the New Testament. Those who are quite unknown, but they had the presence of God with them. That is the greatest thing God can honor us, is to always be with us and talk with us and encourage us. और इस पुराने नियम में भी कई नई वाचा में भी कई ऐसे व्यक्ति है जो परमेश्वर के साथ चले हैं, उन्होंने परमेश्वर का आदर किया है और परमेश्वर के लिए एक अच्छा जीवन बिताया है और परमेश्वर के वचन को बांटा है। God becomes our friend and we walk with him and talk with him, and he tells us about the future. He tells us about how he cares for us. That is a wonderful fellowship with God. That is the greatest honor God can give you and me. और परमेश्वर हमारे मित्र हैं, हम उसके साथ चल सकते हैं, हम बातें कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा सौभाग्य है हमारे जीवन के लिए। So my dear sisters, wherever you are, just like Mary of old, Jesus said, Mary has chosen the good part, always to listen to me and hear from me. That is the best part, should not be taken away from her. Let us also follow that example of Mary. और यीशु मसीह ने जैसे मरियम के लिए कहा था कि उसने अच्छे भाग को चुन लिया है जो उससे लिया नहीं जाएगा, उसी प्रकार हमें भी परमेश्वर को सुनना है और उस अच्छे भाग को ले लेना है।
So then all our other work that we do in the work, in our school, in our college, and our home, everything will be done for the glory of God. और जो कुछ भी हम करते हैं हमारे जीवन में, जहाँ कहीं भी हम हो, स्कूल में, कॉलेज में, हमारे घर में, तो हमें परमेश्वर की महिमा के लिए ही करना है, जो कुछ करना है। And all our problems also in our life, financial problems, sicknesses, everything will work together for our good. और यदि आर्थिक तंगी भी आ जाए या फिर बीमारियां भी आ जाए, तो वो सब भी भलाई ही के लिए है। God is there with us. When God is there with us, everything will go well with us. His presence is most important for us. और यदि प्रभु हमारे साथ है तो सब कुछ ठीक ही होगा, उसकी संगति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। So, dear brothers and sisters, let us always, you and I can always walk in the presence of God every day, right from today. If something has gone wrong, set it right immediately and confess your sin before God, confess your sin before people, and then you're back into fellowship with God and maintain that fellowship. और इसलिए बहनों, हमें आज ही से हमारी जो संगति है परमेश्वर के साथ अच्छी करनी है। यदि कुछ भी खराब हो जाता है या बिगड़ जाता है तो पश्चाताप करना है और उसके साथ ठीक कर देना है सब कुछ। And don't get discouraged. God is always there to encourage you. और कभी भी निराश नहीं होना है, परमेश्वर हमेशा हमें प्रोत्साहित करने के लिए है। He is the Lord of heaven and earth. He will do everything to help you. और हमारे पास वो प्रभु है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, वो हमारी किसी भी तरीके से मदद कर सकते हैं। And He will take away our minds from earthly things to more and more to heavenly things. और हमारा जो संसार पर का जो हमारी जो नजरें हैं वो उठाकर हमें स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाने के लिए अनुग्रह करते हैं। So we have to live in this world only for a short time. For all eternity, we'll have to live for millions of years, crores of years. और हमें जो है अनंत जीवन में तो कई दिनों तक रहना है, कई समय तक, पर यहाँ पृथ्वी पर हमारे पास थोड़ा ही समय है। So we look from a heavenly point of view, from eternal point of view, everything. और हमें इसलिए अनंत जीवन के लिए और स्वर्ग के देखते हुए हमें चलना है अपने जीवन को। So, dear sisters, let us always put our minds on the Lord and give thanks to Him and honor Him. We see wonderful change will happen in your life. और इसलिए बहनों, अपनी आंखों को हमेशा प्रभु की ओर लगाकर रखना है, फिर हम देखेंगे अद्भुत जो हमारे जीवन का बदलाव है वो हमारे जीवन में दिखाई देगा। Jesus will value your friendship so much, and we will pray to God and pray for others. God will hear your prayers. प्रभु आपकी जो दोस्ती है उसकी बहुत ज्यादा कीमत रखते हैं और आप प्रभु की स्तुति और महिमा करें। He loves to be friends with you and me. प्रभु बहुत ही पसंद करते हैं आपको और मुझको अपना दोस्त बनाना। So, and we will enjoy the fellowship with God. और हम बहुत ही लुत्फ उठाएंगे, बहुत ही आनंद मिलेगा हमें जब परमेश्वर की संगति हमारे साथ होगी। And then we will say all the other worldly attractions, we will say, can easily say no, this is not for me. I don't want these things. I can easily afford to displease people and please God. और बहुत ही आसानी से हम कह देंगे कि नहीं ये संसार की वस्तुओं को, ये सब मेरे लिए नहीं है, और जो भी कुछ जो मनुष्य को खुश करने वाली बातें होगी हम उसको बिल्कुल नकार देंगे। And then God will always give us a song in our life. So we can go every day in our life, we can go singing a song to the Lord, praising and worshiping the Lord. और फिर प्रभु अपना नया गीत देंगे हमारे मन में, फिर हम उस गीत को गा के प्रभु की स्तुति और महिमा करेंगे। Throughout the day we can give thanks to God because we are in the presence of God. और अपने जीवन के हर एक दिन, पूरे दिन हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। So that is the life which God wants us to live every day. और ये जीवन है जो प्रभु चाहता है हमें से हर एक जन जिए हर एक दिन। Whether you are in the village or the town or anywhere, you can live like that. Whatever your situation or problem, you can live a life like that. कहीं भी आप हो, चाहे गांव में हो, चाहे शहर में हो, कोई भी परिस्थिति हो, परमेश्वर चाहते हैं कि उसके जैसा एक जीवन जिए। So let us pray. प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, समय आपकी महिमा हमारे जीवन में आए प्रभु जी। आपकी महिमा पवित्र आत्मा से भरे प्रभु जी, ते आपकी गुण हमारे जीवन में प्रकट हो जाए। Let us show forth your good nature, Lord, by the power of the Holy Spirit, Lord, so that we can always give thanks to you in every situation. Lord, all this दुनियादारी की चीज बहुत ही कम हो जाए हमारे जीवन में प्रभु। हम आपको देखे प्रभु, आप हमसे प्रकट करना चाहते हैं प्रभु जी कि आप कितना बड़ा है प्रभु। ये भलाई से हमको जीना है प्रभु जी। हमारा दिन इस दुनिया में बहुत ही कम समय है। हम लोग गीत गाते हैं 2 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी प्रभु।
हमको जल्दी निकलना है, आपकी संगति में रहना है, आपका जो इच्छा है वही हमको करना है प्रभु जी। सब सिस्टर्स को आशीष करे प्रभु जी। हम लोग तकलीफ में दुख में जाते हैं प्रभु जी, लेकिन आप हमारे साथ है प्रभु जी। आपने हमारे लिए इतना सारा दुख उठाया ना प्रभु। आप इतना गरीब थे लॉर्ड, इतना दुखी थे प्रभु जी। आप वहाँ आपके पास कुछ साधन भी नहीं चाहता कोई यहाँ वहाँ चलने के लिए प्रभु, लेकिन आपने आपके पास कभी घर भी नहीं था, रास्ते पे रहते थे प्रभु जी, और गुफे में रहते थे प्रभु जी। प्रभु आपके लिए हमारे लिए आपने कष्ट उठाया प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। आपको देखते जब हमारा भी सब तकलीफ भी कम हो जाता है प्रभु। आपने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया प्रभु जी। इतना सारा आर्थिक भलाई भी किया प्रभु जी, आपको नौकरी दिया, खाना पीना सब दिया प्रभु जी, और आपकी संगति को हमको दिया प्रभु जी, आपको कलीसिया दिया, गीत दिया प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। आपका वचन हमको इतना सारा प्रोत्साहन देते हैं, वचन हमको ज्योति देते हैं प्रभु। हम इस धरती का नहीं है प्रभु, हम स्वर्गीय लोग हैं, हमको ऐसे जीना है प्रभु जी। हम पाप से आप हमको छुड़ा देंगे प्रभु जी, हर पाप से प्रभु जी, और आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, और दूसरे के लिए एक भलाई होगी, यीशु समाचार दूसरों को भी बता सकते हैं प्रभु। हमको दिखा प्रभु जी, जो आपके लिए तरस रहे हमको दिखा दो प्रभु जी, ताकि यीशु खुशखबरी दूसरों को भी बता सकते हैं कि प्रभु इतना आत्मा से भर के हम विजय रह सकते हैं प्रभु जी। वी कैन बी विक्टोरियस इन यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आपका नाम का महिमा हो हमारे जीवन में प्रभु, सब सिस्टर्स के जीवन में, उनका परिवारों में प्रभु जी, उनका इलाके में प्रभु एक ज्योति से बने प्रभु जी। प्रभु कलीसिया को भी सबको आशीष के कारण बने प्रभु जी। सभी के लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं कभी कि ये आशीष हम दूसरों को भी दे सकते हैं, आपके साथ संगति कर सकता है, जैसे आपने हम हमारे लिए प्रार्थना करें, हम दूसरों को भी प्रार्थना कर सकते हैं साथ साथ में प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। आप महान है प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह की अभिषेक, पवित्र आत्मा अभिषेक हमारे ऊपर हमेशा रहे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, हालेलुया, आमीन। तो प्रेज द लॉर्ड सिस्टर्स। प्रभु आपके आप पवित्र आत्मा की अभिषेक मांगे और आपके ऊपर हमेशा रहे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। गुड नाइट ब्रदर्स सिस्टर्स, गॉड ब्लेस यू।